محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی. پرواز ٹی وی خبرنامے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی. اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں ہیں، آپ تو معصوم ہیں اور آپ کی اللہ پاک نے اگلی پچھلی تمام لغزشیں معاف فرما دی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے سے زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائیے. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، حتیٰ کہ خفگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ظاہر ہونے لگی. پھر فرمایا کہ بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں، پس تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے. آغاز سے قبل ایک نظر آج کی اہم سرخیاں. مچھروں سے حفاظت کے لیے مچھردان کا استعمال کریں. مچھردان کے استعمال پر عوام میں شور پیدا کریں اور سیزنل امراض سے بچاؤ کے لیے محکمہ صحت ہمیشہ تیار رہے. ضلع کلکٹر سی نارائن ریڈی. اللہ رب العزت اور دین سے عشق و محبت کا عملی نمونہ حج. مناسک حج کی ادائیگی کے لیے عازمین کے قافلے روانہ. مینا، عرفات، مزدلفہ پر روح پرور سما. 2 سال بعد حج کی رونقیں. پی ایف آئی سے وابستہ مزید 3 کارکنوں کو پولیس نے کیا گرفتار. سنگین دفعات کے تحت مقدمات درج و جیل بھیجا. کراٹے و دیگر غیر قانونی سرگرمیوں میں تھے ملوث. سی پی ناگراجن کی پریس کانفرنس. کورونا کی چوتھی لہر کے امکانات. ضلع سرکاری دواخانے میں کورونا کے خصوصی وارڈ کا قیام. ماسک کا استعمال و دوری ہے ضروری. ضلع سرکاری دواخانہ سپرنٹینڈنٹ پرتیما راج. اب خبریں تفصیل سے. ڈینگو ملیریا بیماری کی روک تھام کے لیے ہر شخص مچھردان کا استعمال کرے. سیزنل بیماریوں سے بچنے کے لیے مچھردان کا استعمال ضروری ہے. ضلع کلکٹر سی نارائن ریڈی کی ویڈیو کانفرنس. ڈینگو ملیریا زہریلی بخار کی روک تھام کے لیے ہر فرد مچھردان کا استعمال کرے. اس بات کی اہمیت کو عوام میں گھر گھر جا کر شعور بیداری لائے جانے کے لیے ضلع کلکٹر سی نارائن ریڈی نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے طبی شعبے کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہوئے اس موقع پر بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ANMS آشا ورکرز گھر گھر جا کر مچھردان کے استعمال کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانے کے لیے عوام میں شعور لائے. مچھردانی کے استعمال کے فوائد سے آگاہ کیے جانے پر ہر فرد مچھردان کے استعمال کو ضرور اپنانے کی کوشش کریں گے. 1 ہفتے میں گھروں کو پہنچ کر عوام کو آگاہ کیے جانے پر کوئی بھی ایسا خاندان بغیر مچھردان کے نہیں رہے گا. اس کام میں طبی عملہ بھی آگے آتے ہوئے تعاون کرے. ضلع میں گزشتہ سال ڈینگو بیماریوں کے کیس کافی حد تک درج ہوئے ہیں. اس سال بھی اسی طرح نہ ہو اس لیے پہلے سے الرٹ ہوتے ہوئے یہ اقدام اٹھائے جا رہے ہیں اور محلوں میں گھروں کے اطراف و اکناف خصوصاً صاف صفائی کا خیال رکھیں اور محلوں کے گڑھوں میں پانی نہ ٹھہرنے دیا جائے. پینے کے پانی کی صفائی، لیکیج پائپ لائن کی خرابی دیکھے جانے پر فوراً میونسپل عہدیداروں کو مطلع کریں اور کہیں بھی سیزنل بیماریوں کی اطلاع پر فوراً طبی عملہ کو اطلاع دیتے ہوئے بیماریوں کی روک تھام کرنے کی کوشش کریں اور طبی عملوں کو PHC مریض کے علاج کے لیے فوراً تیار رہنے اور دواؤں کو ہمیشہ تیار رکھنے پر زور دیں.
मलेरिया बीमारी की जांच के लिए पीएचसीज में मरीज के खून के सैंपल देते हुए भेजे। एडपली के पीएचसी दवाखाने में तिब्बी अमले की तसाहिली बरते जाने पर जिला कलेक्टर ने मेमो जारी करने का हुक्म किया और सरकारी अस्पतालों में जख्मियों की तादाद में कुछ इजाफा हुआ है और खवातीन को जख्मियों के मुतालिक एतमाद लाते हुए हामिला खवातीन की तीसरे महीने से इनकी तफसीली मालूमात को हासिल करते हुए इनकी सही जांच करवाए। आउट पेशेंट की तादाद में इजाफे के लिए इनमें भरपूर एतमाद लाए, तब सरकारी दवाखानों में मरीजों की तादाद बढ़ सकती है और डॉक्टर्स तिब्बी अमला ऑनलाइन में अपनी हाजिरी बताए। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में डिप्टी डीएमएचओ डॉक्टर तुकाराम राठौड़, पीओ डॉक्टर अंजना के अलावा दीगर भी मौजूद थे। हज इस्लाम का बुनियादी रुकन और अहम इबादत है और अल्लाह और दीन से इश्क व मोहब्बत का अमली नमूना है और मुसलमानों के इत्तेहाद व एकजहती का निशान है। 2 साल बाद फिर से हज की रौनक है। मनासिके हज के लिए आज़मीन के काफिले रवाना। हज इस्लामी इबादत का बुनियादी रुकन है। ये दीन इस्लाम और अल्लाह से इश्क व मोहब्बत का अमली नमूना और मुसलमानों के इत्तेहाद व एकजहती का निशान है। बैतुल्लाह शरीफ वो मुक़द्दस घर है जो हर दौर में मुसलमानों का मरकज रहा। इस्लाम चूंकि क़यामत तक नबी नए इस्लाम के लिए ज़ाब्ते हयात पेश करता है, इस हवाले से हज उम्मत मुस्लिमा का एक ऐसा इज्तिमा है जिसकी किसी दौर और किसी मजहब में कोई मिसाल नहीं मिलती। ये इज्तिमा तमाम मज़ाहिब आलम पर इस्लाम की बरतरी का वाज़ेह सबूत है। दुनिया में सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुदा की इबादत के लिए एक इबादतगाह बनाई और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि ज़ाहिरी तौर पर इसका कोई निशाना बाकी ना रहा, तो हुक्म खुदाबंदी से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इस मुक़द्दस घर की तामीर फरमाई। इस तरह हज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला से मोहब्बत की अलामत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की मोहब्बत में जिस तरह अपने बाप को छोड़ा, अपना घर बार छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा और एक बयाबान जंगल में अपने बीवी बच्चों को ला बसाया, वहां पर पत्थरों से अल्लाह का घर बनाया, ये सब मोहब्बत की अलामत है। रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, और जब उठा रहे थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम दीवारे खाने काबा की और इस्माइल भी, और कहते जाते थे कि ऐ हमारे परवरदिगार, ये खिदमत हमसे कबूल फरमाइए। बिलाशुबा आप खूब जाने और सुनने वाले हैं। ये इन बुजुर्गों का खुलूस था कि इस अजीम खिदमत के साथ वो पैक कर आजिज़ व इनकिसार भी थे। और जब ये घर तामीर हो चुका तो रब्बे करीम के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पुकार कर इस घर की ज़ियारत की दावतें आम दी। अल्लाह ताला ने ये आवाज़ हर जी रूह तक पहुँचाई और फिर जिनके लिए मुक़द्दर बनाया, इनकी रूह ने इस पुकार पर लब्बैक कहा। दुनिया की ये पहली इबादत का खाने काबा मक्का मुअज़्ज़मा की अर्ज़ मुक़द्दस पर मौजूद है, जहां हर साल दुनिया भर के चप्पे चप्पे से लाखों मुसलमान फरीज़े हज की अदायगी के लिए जमा होते हैं। कुफ्र व शिर्क और बुत प्रस्ती के दौर में भी जब खाने काबा के अंदर कुफारे मक्का ने बुत रख दिए थे, हज का सिलसिला मुनक़ता नहीं हुआ। लेकिन नबी करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बासत, फतह मक्का और हज्जतुल विदा के मौके पर इसे आलमगीर इस्लामी इज्तिमा की हैसियत हासिल हो गई। हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर इस फरीज़े की अदायगी अल्लाह ताला की अज़मत वो किबरियाई के एतराफ़ के साथ साथ उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद व एकानियत का फ़क़ीदुल मिसाल मज़हर है। हज बैतुल्लाह के लिए दूर दराज और दुश्वार गुजार रास्तों के सफर की सोबतों को बर्दाश्त करने के अलावा आमदोरफ्त और क़याम व ताम के अखराजात और अहले खाना से वक्ती वो आर्जी जुदाई ऐसे अवामिल है जो एक मुसलमान के अंदर अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए दामे, दरमे, खदमे, सखने, कुर्बानी का बेमिसाल जज्बा पैदा करते हैं। इस्लाम ने उम्मत मुस्लिमा को इत्तेहाद व एकजहती का जो दर्स दिया और खुदा की रस्सी को मजबूती से थाम लेने और अपने अंदर तफरुका पैदा ना करने की जो तलकीन फरमाई, इसका आगाज मस्जिद में नमाज से हुआ, जहां एक मोहल्ला या किसी बस्ती के मुसलमानों को 5 वक्त इकट्ठा होने का मौका मिलता है।
इस इज्तिमा का दायरा नमाज जुमा की सूरत में मजीद वसी कर दिया गया और फिर नमाज ईदैन के बाद इस तौसी के डांडे आखिरकार हज बैतुल्लाह की सूरत में मुसलमानों के आलमगीर इज्तिमा से जा मिले। ये मुसलमानों का आलमगीर इज्तिमा पूरी नौ इंसानी के लिए क़यामत तक रश्तो हिदायत का जरिया होने के हवाले से एक फाल मुतहरिक और ऐसी आलमगीर इज्तिमा पूरी नौ इंसानी के लिए क़यामत तक रश्तो हिदायत का जरिया होने के हवाले से एक फाल मुतहरिक और ऐसी आलमगीर तहरीक है जिसका मकसद रंगो नस्ल के किसी इम्तियाज के बगैर पूरी नौ इंसानी को कुफ्र शिर्क और झूठे खुदाओं से निजात दिलाकर तौहीद खुदाबंदी की राह पर डालना है। हज की गर्ज़ो गायत चंद खास मुकामात की सिर्फ ज़ियारत ही नहीं बल्कि इसके पसे पर्दा ईसा, कुर्बानी, मोहब्बत और खुलूस की एक दरख्शा तारीख मौजूद है। चोर मुखफिल मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। मुसलसिल चोरियों के बाद पुलिस सारिकों को पकड़ने में नाकाम। पेदवा मंदिर के सदर राजेश्वर का बयान। नंदीपेट मंडल के सीएच कुंडूर गांव के हुदूद में पेदवा मंदिर में हुंडी का कुफल तोड़कर नामालूम अफराद ने चोरी की और मंदिर के देवी के गले से 2 तोले का तराई जेवर का सरखा किया। इस मंदिर की कमेटी के मेंबरान ने ये बात बताई। इस मौके पर मंदिर कमेटी सदर राजेश्वर ने बात करते हुए बताया कि गुज़िश्ता में भी मंडल के शाहपुर, आइलापुर, तलवेदा गांव के पेदमा मंदिरों में इसी किस्म की सरके हुए, मगर पुलिस डिपार्टमेंट आज तक सारिकों को पकड़ने में नाकाम रहे और इसी मंदिर में गुज़िश्ता साल भी बड़ी चोरी हुई। इन्होंने पुलिस की नाकामियों पर बरहमी जताते हुए मुतालिबा किया कि पुलिस पेट्रोलिंग के जरिए सारिकों को पकड़े और सरका हुए मंदिरों के जेवरात, पैसे वापस दिलाए। నందిపేట మండలంలో సిహెచ్ కొండూరు గ్రామంలో మా ముదిరాజుల కులదైవమైనటువంటి పెద్దమ్మ తల్లి ఆలయంలో మంగళవారము అర్ధరాత్రి దొంగతనం జరిగింది. అమ్మవారి యొక్క పుస్తెల తాడు 2 తులాల 2 మాసాలు అలాగే గల్లా పగలగొట్టి దాంట్లో ఉన్నటువంటి డబ్బులు దొంగతనం చేయడం జరిగింది. అలాగే ఇంతకు గత సంవత్సరం కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా కూడా దొంగతనం జరిగింది. అయితే మేము ఇదే విధంగా కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది ఎస్ఐ గారికి. అయితే మనం ఇదే విధంగా మా కులదైవమైనటువంటి పెద్దమ్మ గుళ్ళ మీద దాడులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. आरमू में इब्तिदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जदीद टाउन कमेटी की तश्कील। सदर मोहम्मद जहीर अली और मुअतबर मोहम्मद अब्दुल खालिक मुंतखब। आरमूर इब्तिदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टाउन जदीद कमेटी की तश्कील अमल में आई। आरमूर गेस्ट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया, जिससे खिताब करते हुए नौमंतखब इब्तिदाई मजलिस सदर आरमूर टाउन मोहम्मद जहीर अली ने कहा कि सदर कुली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आरमूर टाउन की इब्तिदाई मजलिस के इंतखाबात की ज़ेरे निगरानी जनाब सैयद अब्दुल हक नसीर इंचार्ज शोबे तंजीम कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अमल में आए। निजामाबाद जिले सदर इम्मे फहीम की ज़ेरे क़यादत आरमूर के उर्दू घर मुस्लिम शादी खाना सईदाबाद में टाउन जदीद कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई, जिसकी हमें जिम्मेदारी दी गई। इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे, जिससे आने वाले दिनों के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मज़ीद निचली सतह से मजबूत किया जाएगा। मजलिस वो वाहिद जमात है जो दलितों, पिछड़े तबकात की फलाह व बहबूदी की पाबंद अहद है। हर तबके के मसाइल की इकसवी के लिए जदोजहद करती है। मजलिस का मकसद मजलूमों और अक़लियतों मुसलमानों के हुकूक को दिलाने के लिए काम करती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी के दौर से गरीबों की आवाज रही। आरमूर म्यूनिसिपल में मसाइल को हल करने के लिए हर वार्ड में जिम्मेदारी दी जाएगी। आरमूर टाउन जदीद कमेटी में सदर मोहम्मद जहीर अली, मोतमद मोहम्मद अब्दुल खालिक, शरीक मोतमद मोहम्मद फहद, मोहम्मद उबैदुल्लाह, शेख निजामुद्दीन, मोहम्मद इलियास, खाजिम नदीम, अरकान आमिला में मोहम्मद जावेद, सैयद अब्दुल मतीन, शेख मोहम्मद आदिल, शेख इरफान शामिल है। मोहम्मद जहीर अली ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, जिले सदर फहीम का शुक्रिया अदा किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर जो टाउन बॉडी आरमूर की तश्कील दी गई है, उसके मेंबरान के साथ आज एक छोटा सा इजलास रखा गया और हम इस इजलास के ज़रिए
सभी से मशवरे के बाद कि आज जिस तरीके से हमारी टाउन बॉडी को तश्कील दिया गया है, जितने भी मेंबर्स हैं उनके साथ हमने बैठकर एक मीटिंग किए हैं। हमको ये जिम्मेदारी दी और हम इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। जो हम पर भरोसा किया गया है, हम सदर मजलिस का बहुत शुक्रगुजार हैं। तय कर चुके हैं कि आने वाले दिनों के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया जाएगा, क्योंकि आप देखते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब के दौर से गरीबों और मजलूमों की एक आवाज़ है कि आपने देखा हर जमात सब मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं, गरीबों का, मजलूमों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज इन मुसलमानों को बाशऊर बनाने के लिए आज सारे हिंदुस्तान का दौरा कर रही है और लोगों को बाशऊर बना रही है। पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 3 अरकान शेख सादुल्लाह, मोहम्मद इमरान और मोहम्मद मुबीन गिरफ्तार। कराटे की तरबियत देने और दीगर गैर समाजी सरगर्मियों में मुलविस होने पर संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कमिश्नर ऑफ पुलिस के.आर. नागराजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात का इंकशाफ करते हुए बताया कि शेख सादुल्लाह उम्र 40 साल, साकिन गुंडाराम निजामाबाद मंडल, मोहम्मद इमरान वल्द मोहम्मद अनवर उम्र 22 साल, पेशा चिकन सेंटर, साकिन मालापल्ली नजद वाटर टैंक, मोहम्मद अब्दुल मुबीन वल्द मंसूर उम्र 27 साल, साकिन धारूगली हाल मुक़ीम हबीबनगर को गिरफ्तार करते हुए मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया। इन्होंने बताया कि मोहम्मद अब्दुल कादिर साकिन जगतिया, जो फिलवक्त निजामाबाद शहर के ऑटो नगर में क़याम पजीर था, 6 माह से मकान की छत पर मार्शल आर्ट्स, कराटे और कुंफू की तरबियत देने की इत्तला मिलने पर इसके मकान पर धावा करते हुए अब्दुल कादिर को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान इन 3 अरकान के नाम का इंकशाफ करने पर गिरफ्तारी अमल में लाई गई। कमिश्नर ऑफ पुलिस के.आर. नागराजू ने बताया कि अब्दुल कादिर ने पूछताछ के दौरान इस बात का इंकशाफ किया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में शमूलियत इख्तियार करने वाले अरकान को 6 लाख रुपये मालियाती मकान की तामीर की पेशकश करते हुए तरगीब दी जाती है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से 200 अरकान को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। मार्शल आर्ट्स की तरबियत देने पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अरकान को गिरफ्तार करते हुए UAPA के तहत मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसीपी अरविंद बाबू, एसीपी वेंकटेश्वर, साउथ रूरल सीआई नरेश और दीगर भी मौजूद थे। कमिश्नर ऑफ पुलिस के.आर. नागराजू ने बताया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ममनुआ तंजीम सीमी का नाम तब्दील करते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से इस तंजीम को सरगर्म करते हुए नौजवानों को तरबियत दी जा रही है। ఇవి ప్రస్తుతానికైతే 120, 120B బెయిల్ రాదండి, అండ్ ఊపా ఆల్సో బెయిల్ రాదని అనుకుంటున్నాం. మన ఉన్న ఎవిడెన్స్ ప్రకారంగా రాదని అనుకుంటున్నాం. వెపన్స్ ఇంకా రాలేదండి, వెపన్స్ ట్రైనింగ్ లేదు ప్రస్తుతం. వీళ్ళంతా ఏదైతే ఓపెన్ ఆర్గనైజేషన్ అనే కరాటే ఓపెన్ కదా అండి, అది కరాటే క్లాసెస్ అని ఆ ముసుగులో ఈ క్లాసెస్ అవుతున్నాయండి వాళ్ళకి. వాళ్ళు నోరు ఇప్పట్లేదండి. మేము అన్ని లెటర్స్ పెడుతున్నాం, మనం ఫిజికల్గా అన్ని కలెక్ట్ చేసుకున్నాక ఏమన్నా ఇవ్వగలుగుతాం డాటా. ఇంటర్నేషనల్ ఫండింగ్ ఐడియా లేదండి. ఏదన్నా ఉంటే అలాంటివి ఉంటే నేను మళ్ళీ పై అధికారులతో తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇంటర్నెట్ అవునండి. रेडिएंट हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम बरकतपुरा निजामाबाद नर्सरी का दाखिले जारी है तो उजलत करे। कुशादा क्लासरूम, वसीबो अरीज मैदान, कल्चरल प्रोग्राम पर भी खास तवज्जो। इंग्लिश मीडियम तालीम दीनी माहौल के साथ, डिजिटल क्लासरूम्स, नर्सरी व पीटी की तालीम खेलकूद के साथ, साफ सुथरा माहौल, तालीम के साथ साथ तलबा की तरबियत, कमजोर तलबा पर खुसूसी तवज्जो, हर मजमून का अलहदा इम्तिहान, बिना झिझक डाउट्स खदशात दूर करने के लिए माहिर असातिज़ा, सिर्फ तालीम नहीं तरबियत पर भी खुसूसी फोकस, आओ सीखने आओ तालीम की तरफ। रेडिएंट हाई स्कूल बरकतपुरा निजामाबाद, मुसलिमा हुकूमत तेलंगाना, तवज्जो जरूरी। नोरा बुरखा हाउस
नोरा फैशन, बदलते जमाने के साथ चलिए और फैशन के साथ चलिए। नोरा बुरखा हाउस पर नित नए डिजाइन के बुरखे, सूट्स, चुनरी, लेगिंग, दुपट्टा, स्कर्ट जो हर खातून की पहली पसंद होगी। क्वालिटी के साथ डिजाइन और डिजाइन ऐसे कि जो आज के असली तकाज़ों को पूरा करे। सूट्स, बुरखा और दीगर मलबूसात ऐसे कि आपको जाजिब नजर बना दे। हमारे यहाँ मसरी, खतरी, दुबई, तुर्की, लिबनानी, सऊदी बुरखा को अबाया निहायती वाजिबी दामों में दस्तयाब। म्यारी क्वालिटी, वाजिबी दाम, फैशन के दौर के जदीद मलबूसात सिर्फ नोरा बुरखा हाउस पर। नोरा बुरखा हाउस, नेहरू पार्क, निजामाबाद। प्रोप्राइटर हाफिज अतीक अहमद वो सन्स। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। हुकूमत अपना गांव, अपनी तालीम को कहीं भी अमल में नहीं ला रही है। सरकारी स्कूल मसाइल से दो चार है। आज तक तलबा को यूनिफॉर्म, किताबें मुहैया नहीं की गई। पीडीएसयू की सर्वे रिपोर्ट। जिले के सरकारी स्कूलों में मसाइल की भरमार। पीडीएसयू की सर्वे रिपोर्ट। शहर के शंकर भवन, मानिक भवन स्कूलों में पीडीएसयू रियासती कमेटी की जानिब से एक सर्वे अमल में लाया गया। इस मौके पर पीडीएसयू कायदीन ने बात करते हुए बताया कि सरकारी स्कूल बहुत से मसाइल से दो चार है। हुकूमत अपना गांव, अपनी तालीम को कहीं भी अमल में नहीं ला रही। अब तक तलबा को यूनिफॉर्म, किताबें मुहैया नहीं की गई। आज तक बच्चों की तादाद के हिसाब से इन्हें बाथरूम, बैतुल खला पूरे नहीं है। तलबा की बुनियादी मसाइल को आज तक हल नहीं किया गया और पीडीएसयू ने इस मौके पर मुतालिबा किया कि टीचर्स की मखलूआ जायदादों को हुकूमत फौरन पूरा करे और स्कूल्स के मसाइल को हल करने में दिलचस्पी ले। पीडीएसयू की जानिब से ये सर्वे रियासत भर में जारी रहेगा। इस मौके पर पीडीएसयू कायदीन जे राजेश्वर, साई कृष्णा, वंशी, महेश के अलावा दीगर भी मौजूद थे। जिला सरकारी अस्पताल में चौथे मरहले की कोरोना वबा की रोकथाम के लिए खुसूसी वार्ड का क़याम और आवाम से दूरी बनाए रखने और मास्क इस्तेमाल की हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज की अपील। जिले के सरकारी दवाखाने में फोर्थ वेव कोरोना वबा के चौथे मराहिल को लेकर आवाम परेशान न होने और सरकारी दवाखानों से फौरी रुजू होने जिला सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने आवाम को मशवरा दिया। इस मौके पर इन्होंने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए बताया कि जिला एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर अपनी जानिब से सरकारी दवाखाने का दौरा करते हुए हमें हमेशा अलर्ट रहने का मशवरा दे रहे हैं और फोर्थ वेव कोरोना वबा के चौथे मरहले में आने वाले मरीजों के लिए खुसूसी वार्ड का इंतजाम किया गया है। आज तक कोई भी कोरोना से मुतासिर की कोई इत्तला नहीं है और न ही कोई मरीज को दवाखाने में लाया गया है। हमें उम्मीद है कि कोरोना वबा के चौथे मरहले के आने से कोई बड़ा नुकसान या मुज़िर असरात होंगे। फिर भी डॉक्टर प्रतिमा राज ने इस मर्ज से अलर्ट रहने, मास्क का इस्तेमाल करने और एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की हिदायत दी और सैनिटाइजर का बराबर इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। రిపోర్ట్ అయితే ఒక ఆర్టీపీసీఆర్ ఒక 4 మెంబర్స్కి పాజిటివ్ వచ్చింది జీజీహెచ్లో అండ్ ర్యాట్ ఒక 2 మెంబర్స్కి వచ్చింది. టెస్ట్లో ఆల్మోస్ట్ దగ్గర ఒక 100 వరకు టెస్టులు చేశాము. తక్కువ మందికే వస్తుంది, అందరూ తీసుకున్నారు. సో అంత సివియారిటీ మనం చూసినట్టు సెకండ్ వేవ్లో చూసినంత సివియారిటీ ఉండకపోవచ్చు. థర్డ్ వేవ్ మనం జనవరిలో వచ్చింది, అప్పుడు మనం చూసాం కేసెస్ చాలా వచ్చాయి కానీ ఒకటి కూడా ఎక్కువ సివియర్గా అవ్వడం కానీ బాగా కాంప్లికేటెడ్ అవ్వడము అట్లా ఏం చూడలేదు. సో సింపుల్గా వచ్చి వెళ్ళిపోయింది. సో ఈసారి కూడా ఒకవేళ వచ్చినా కానీ నార్మల్గా వచ్చి వెళ్ళిపోతుందని అనుకుంటున్నాం. हमारी जायज मांगों और मसाइल को फौरन हल किया जाए और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हमें फिर से काम की जिम्मेदारियां वापस दी जाए। जिला रेवेन्यू शोबा के वीआरएस का मुतालिबा। जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने जिला वीआरए एसोसिएशन की जानिब से धरना मुनक्किद किया गया, जिसमें जिले के वीआरए कायदीन ने अपने मसाइल की इकसूई की मांग की। इस मौके पर जिला वीआरए एसोसिएशन सदर जी मोहन ने बात करते हुए बताया कि वीआरए काम करने वालों को रेवेन्यू शोबे में रीलोकेट जॉब चार्ज करते हुए काम पर लिया जाए और काम की जिम्मेदारियां हवाले की जाए और जिले में 6वें 12-18 साल स्पेशल ग्रेड इंक्रीमेंट को रोक दिया गया है। इसे फौरन जारी करने का मुतालिबा किया गया
और बताया कि हमारी मांगों और मसाइल को फौरन हल किया जाए। इस प्रोग्राम में बीआरएस जिला एसोसिएशन सदर तृप्ति रेड्डी, निजामाबाद डिवीजन सदर सुमन और जिले के तमाम बीआरएस भी मौजूद थे। సంక్షేమ సంఘం ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కమిటీ పిలుపు మేరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గౌరవ కలెక్టర్ గారికి మా యొక్క సమస్యల మీద మెమోరాండం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మా యొక్క సమస్యలు ఏమిటంటే గత 2 సంవత్సరాల నుంచి మా యొక్క విధులను తొలగించి ఊరికైనా కూర్చోబెట్టిండు. మాకు ఎస్టీజీ ఇదే రెవెన్యూ శాఖను లొకేట్ చేయాలని ఒక డిమాండు, మరియు కార్యాలయ నియామకాలు అదొకటి, 12 ఇయర్స్ 6 ఇయర్స్ ఇది కూడా మాకు 2 ఇయర్స్ నుంచి ఆపేసిండు. దాన్ని కూడా చేయాలి. తర్వాత गांव में न रहते हुए अपने आबाई मुकाम की खिदमत करना काबिल सताइश है। 10 लाख की लागत से माधवनगर सोसाइटी बिल्डिंग की तामीर करना काबिल तारीफ। साबिका वजीर एम वेंकटेश्वर का बयान। निजामाबाद मंडल माधवनगर के सिंगल विंडो सोसाइटी की तरक्की के लिए माधवनगर के मुकामी परचौरी सीता महालक्ष्मी परचौरी श्रीनिवास राव ने अपनी जाती 10 लाख रुपए की लागत से सोसाइटी के लिए अपने वालिदैन के नाम पर बिल्डिंग तामीर करवाई। किसानों को मुफीद इस्तिफादा हासिल करने के लिए ये बिल्डिंग की तामीर अमल में लाई गई। इस मौके पर साबिका वजीर एम वेंकटेश्वर राव ने इस इक़दाम पर परचौरी खानदान की सताइश। इस मौके पर साबिका वजीर एम वेंकटेश्वर राव ने इस इक़दाम पर परचौरी खानदान की सताइश की और बताया कि अपने आबाई मुकाम को तरक्की की राह पर लाने के लिए हर शख्स का फर्ज बनता है कि वो अपनी तरफ से कुछ न कुछ करे। हम अपने माँ बाप की जितनी कदर करते हैं इतना अपने गांव की भी इज्जत करनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर एक दूसरे के ताउन से ज़राई शोबे को तरक्की पर लाएं। इस मौके पर कुटुंबा राव ने बात करते हुए बताया कि हमारे पुरखों की याद में सोसाइटी के लिए 10 लाख की लागत से कॉन्फ्रेंस हॉल की तामीर करना काबिल तारीफ है। इस मौके पर इनके हमरा माधवनगर सोसाइटी चेयरमैन एन नागेश्वर राव, 4th वार्ड कॉर्पोरेटर प्रमोद, सर्जन डॉक्टर वाई एस शिवा राव, डीसीएमएस साबिका मैनेजर ए माधव राव, सरपंच सुबा राव के अलावा दीगर भी मौजूद थे। చెప్తూ ఉంటే కొసరాజు వెంకటేశ్వర గారు మాధవనగరం గ్రామంలో ఉన్నటువంటి వివరాలన్నీ ఒక రాసి మా అందరికి పంపించి జ్ఞాపకం చేసి మరి సడన్గా ఆయన అదృశ్యమయ్యాడు. అలాగే ఇందాక చెప్తూ పాత పేర్లన్నీ చెప్తా ఉంటే రామచంద్రరావు గారు అంతకుముందు నుంచి ఒక్కోటి చెప్తా ఉంటే అన్ని నీళ్లు తిరుగుతూ ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఈ సొసైటీ బిల్డింగ్ దగ్గర కొంచెం హాస్పిటల్ లాంటిది కింద ఉండేది. మేము నిజామాబాద్ నుంచి ధర్మారం ఎంత ఆగి ఇక్కడ బ్యాడ్మింటన్ అన్ని ఆడుకుంటూ వెళ్ళేవాడు. ఒక విధమైనటువంటి అనుబంధం అలాగే దాతలతో सरकारी स्कूलों के मसाइल को हल किया जाए, मसाइल की एकसुई ना की गई तो एजुकेशन में जोर लाया जाएगा। एआईएसएफ जिला जनरल सेक्रेटरी रघुराम का मुतालिबा। जिले के डीईओ ऑफिस के सामने एआईएसएफ की क़ियादत में तालीमी मसाइल के हल को लेकर धरना दिया गया। इस मौके पर एआईएसएफ जिला जनरल सेक्रेटरी रघुराम ने कोटगली के लड़कियों के स्कूल की बिल्डिंग को तामीर करने और रियासत भर में सरकारी स्कूलों में यूनिफॉर्म और किताबें फौरन तकसीम करने का मुतालिबा किया और प्राइवेट स्कूलों में वसूल किए जाने वाली मनमानी फीसों पर रोक लगाने की मांग और टीचर्स की मखलूआ जायदादों को भर्ती करने पर जोर दिया। इस धरने में एआईएसएफ जिला सदर अंजलि, जिला कमेटी मेंबरान सुबूत के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ఫీజులు దోపిడిని అరికట్టాలి. అదేవిధంగా ఖాళీగా ఉన్నటువంటి టీచర్ పోస్టులు ఏవైతే ఉన్నాయో వెంటనే డిఎస్సి పెట్టి వెంటనే టీచర్ పోస్టులను భర్తీ చేయాలి. అదేవిధంగా అదేవిధంగా మధ్యాహ్నం భోజనం ఏదైతే ప్రభుత్వ స్కూల్లో నిర్వహిస్తున్నారో ఈరోజు అనేకమైనటువంటి ధరలు పెరిగినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ధరల అనుగుణంగా మధ్యాహ్నం భోజనం మిడ్ డే మీల్స్ ఛార్జీలు కూడా పెంచాలని మేము ప్రధానంగా ఈ డిమాండ్ల మీద ఈరోజు డిఓ కార్యాలయం ముందట బైఠాయించడం జరిగింది. అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చూసుకున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే దాదాపు పాఠ్య పుస్తకాలు 100%లో 30% పాఠ్య పుస్తకాలే అందించడం జరిగింది. అదేవిధంగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో 9 లక్షల పాఠ్య పుస్తకాలు అవసరం ఉంటే దాదాపు 3 లక్షల పాఠ్య పుస్తకాలే ఇప్పటి వరకు రావడం జరిగింది. అంటే దాదాపు విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమైన దాదాపు 25 రోజులు గడుస్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అయినప్పటికీ కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా పాఠ్య పుస్తకాలు इख्तिताम से कबल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर।
मच्छरों से हिफाजत के लिए मच्छरदान का इस्तेमाल करें। मच्छरदान के इस्तेमाल पर आवाम में शौक पैदा करें और सीजनल अमराज से बचाव के लिए महकमा सेहत हमेशा तैयार रहे। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। अल्लाह रब्बुल इज्जत और दीन से इश्क व मोहब्बत का अमली नमूना हज। मनासिक हज की अदायगी के लिए आज़मीन के काफिले रवाना। मीना, अरफात, मुज़दलिफा पर रूह परवर समा। 2 साल बाद हज की रौनकें। पीएफआई से वाबस्ता मजीद 3 कारकुनों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज व जेल भेजा। कराटे व दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में थे मुलविस। सीपी नागराजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना की चौथी लहर के इम्कान। जिला सरकारी दवाखाने में कोरोना के खुसूसी वार्ड का कयाम। मास्क का इस्तेमाल व दूरी है जरूरी। जिला सरकारी दवाखाना सुपरिटेंडेंट प्रतिमा राज। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए प्रवास टीवी से। अब तो इजाजत, अल्लाह हाफिज।